Good afternoon, ladies and gentlemen, and a warm welcome to all the dignitaries, esteemed guests, faculty members, and my dear students. We are moments away from beginning the inaugural ceremony of Ritika 2025, a celebration of creativity, talent, and vibrant spirit of media. Vritika is an annual media convention cum festival organized by the students of BJMC 5th semester. Now it is in its 10th edition. Vritika has evolved into a dynamic two-day event featuring competitions, discussions, and deliberations, drawing participations from colleges across India. The event could not have been possible without our sponsors. This year, Vritika is proudly sponsored by Portronics, our gifting partner, Lakshmi Graphics, our printing partner, our media partners, Who's That 360, world's first influencer content portal by NDTV, Samachar Varta, Ink Post, Global Bharat, Rashtradharm, and Newsmuni. Vritika 2025 isn't just a festival, it's a platform where imagination meets execution and learning blends with experience. It's time to officially begin the day's celebration, and on behalf of DME Media School, I, Dr. Divya Rastogi, extend a heartfelt welcome to our esteemed guests and dignitaries who have graced this occasion with their presence. We are privileged to welcome Mr. Akhilesh Sharma, Managing Editor at NDTV. Sir is a renowned journalist whose work continues to influence national discourse. We welcome you, sir. It's an honor to now invite Mr. Amit Bhatia, editor, ABP Entertainment Live. His deep understanding of entertainment journalism has redefined how stories are presented on screen. Thank you, sir, for gracing the event. I would like to extend a warm welcome to Ms. Bhavna Sharma, anchor at Doordarshan, whose anchoring reflects confidence, clarity, and elegance. A warm welcome to you, ma'am. We are deeply honored to have the presence of Honorable Justice Bhavar Singh Sir, Director General DME, Professor Dr. Komal Vig, Director DME, Professor Dr. Parul Mehra, Head of the Department, DME Media School. Let's welcome all of them with a huge round of applause. To truly understand what DME stands for, excellence, ethics, and empowerment, let's take a brief look at the institution and its creative journey. Please join me in watching this short audiovisual presentation.
Moving forward, light is a symbol of knowledge, positivity, and progress. To mark the beginning of this auspicious occasion, I may invite our esteemed guests and dignitaries for the traditional lamp lighting ceremony. As the flame is lit, it signifies the victory of wisdom over ignorance and hope over despair. Thank you, dignitaries. It's now my pleasure to invite Dr. Parul Mehra ma'am, Head of the Department, Media School, to deliver her welcome address and share her thoughts on the journey of Ritika 2025. Thank you, Divya. Honorable Chief Guest Shri Akhilesh Sharma ji, our guest of honor for today's morning, Mr. Amit Bhatia, Ms. Bhavna Sharma, our Director General, DME, Honorable Mr. Justice Bhavar Singh sir is also present here, Director DME, Professor Komal Vij ma'am, my dear colleagues and all the students who are here from different colleges, very good morning to all of you. Definitely a pleasure and an honor to welcome all these renowned media professionals with all of us today at DME. Well, today's panel is a blend of versatility and sparks, and I am completely thrilled to welcome each one of them today with us here in Ritika today. I am very grateful to all of you that you have joined us for this very important event of ours, Ritika 2025. DME Media School has been incepted in 2013 and Ritika was started in 2016, like an ordinary film festival. Over the years in 2018, it has turned out to be a media festival cum media convention. And during all these years, till now, Ritika has been consecutively conducted. Even during the COVID years, we have managed to do Ritika maybe on an online mode, but it was on. And this time we have entered into its 10th edition. Definitely when you enter into a 2 digits, it becomes very special for anybody. So we have entered into its 10th edition this year, and it has become even more special to us because all of you have joined us today for this event. I would like to take a moment to tell you that DME Media School takes its pride in saying that we are a hub of creativity, innovation, critical thinking, because here we try to offer a blend of theoretical knowledge with the hands-on training experience to the students, with the state-of-art facility in a form of Studio 62, which all the panel members have just visited. So we try to train our students as per the industry standards and try to make them acquaint with the production practices across the industry. I would also like to share a bit about our flagship events. Along with Ritika, we are doing International Film Festival and International Conference, ICANN and SIFI, which we are doing consecutively every year, which we have also entered into its 7th and 8th editions. So, and also we have BG Varghese lecture series, where we invite renowned media experts
who come to the college, one-to-one interaction they do with the media students, and they discuss on the pertinent issues of that time. So this convention cum media festival is definitely not an ordinary one. Obviously, festivity kind of thing is always a part of any festival that takes place, and it's the prime objective to give a platform to the media students so that they can come participate and showcase their talent. But that's not the only objective of Ritika. Ritika is organized as an academic event which is directly or indirectly planned with the objective of media learning for the students. Be it the panel and the deliberation that are going to happen very soon after the address of all the panel members. So this festival try to engage our students in the thought-provoking discussions and debate. Well, there's another very important segment that we have incorporated in this inaugural ceremony today, which is about the value-based journalism. I think we all don't have to need any introduction when it comes to value-based journalism, because value of any content can be examined, can be determined, measured on the basis of the facts which are presented to the public, and which are done with no biasness. And for this, DME Media School take a pride in recognizing those exemplary contribution and feats of working media professional by awarding them with the honor of Ganesh Shankar Vidyarthi Award. And this award is presented to the media professionals for their extraordinary contribution that they make it in the name of noted freedom fighter, crusader, and a journalist, Shri Ganesh Shankar Vidyarthi himself. And this time, the jury members have decided to bestow this on the panel members who are present here with all of you. Give a huge round of applause, ladies and gentlemen. Well, the purpose of this award is telling that even in this age of misinformation or partial journalism, there are still many journalists existing in this industry who manage to bring the best stories which carry facts, and they have still managed to cover a very, very long journey in the industry. And we are extremely honored to welcome veteran from the field of media, Mr. Akhilesh Sharma ji, who is a managing editor of NDTV India. India is one of the most reputed news channel, and he has more than over 3 decades of long experience with the journalism. Sir has always been known for reporting the major national and international events in the country with the fact of integrity, balance, and the in-depth journalism that he makes out, and that's make him stand out of the crowd every time. He is admired for his analytic and nuanced reporting because he commands lot much on the social media also, and it's for all the students, because you all are there on social media. When you'll see these renowned journalists, you'll understand what they are doing in today's scenario. Admiring him today, and we are very thankful, Akhilesh ji, that you have taken out time and you have come here to be with us. Today I would also like to talk about one unsung hero who has courageously stepped into places in the different parts of our country to bring truth to all of us when we were sitting in the couches. I'm talking about the reporters who cover stories on our prominent issues at a ground level. He has promised to dedicate his entire life to cover real picture, not for the fame and glory, but for the crucial task of informing the public about the realities. And we are proud to introduce that hero in a form of Mr. Rohit Ranjan, a distinguished name in the Indian broadcast industry who has nearly 2 decades of experience. He is unable to join us today because of the terror blast that happened yesterday in Delhi, and he has been given a responsibility to do a live show from 12 p.m. to 5 p.m. so he couldn't make out. So I think this is also a learning for the media students that for the journalist, what comes first is news and nation. So for them, news and nation comes first, everything later. Mr. Ranjan has fearlessly covered many critical, situations that have happened in India, and one of it was the Bihar flood that has happened, and for that he has been awarded with ENBA award in 2021. He is always remembered for his sharp analysis and fearless journalism.
Further, I am extremely delighted. I think before I move further, I would like to request Madhav to kindly play that short video that he has sent to us in his absence. हाय एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं नहीं आ पाया। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी थी कि मैं आप लोगों के साथ मिलता, इस मंच पर बैठता, आप लोगों से बातें करता, लेकिन यही मीडिया है, ये पॉसिबल नहीं हो पाया। रैंडमली आप लोग अपडेटेड हैं, इतनी बड़ी खबर हो गई है और इस वजह से मेरा आ पाना संभव नहीं है। लेकिन आई एम रियली वेरी मच थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इस लायक समझा कि ये सम्मान योग्य मुझे माना और यहाँ पर बुलाया, लेकिन नहीं आ पाना इसके लिए मैं अफसोस हूँ। एंड रियली डॉक्टर पारुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी टीम का, आपके कॉलेज की, जिन्होंने इतना ज़्यादा सहयोग किया। और शायद एक लेसन है आप लोगों के लिए भी जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं कि यही मीडिया है। कई चीज़ें आप प्लान करके चलते हो, लेकिन वो पर्सनल चीज़ें शायद प्रोफेशनल टर्म में पीछे रह जाती हैं और हम खबरों के लिए ही जीते हैं और खबरों के साथ ही हमारी पहचान भी है। तो इसलिए सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है हम खबर पर जुड़े रहें। और एक लेसन है शायद आपके लिए भी कि कई चीज़ें हम अगर शेड्यूल करके भी चलें तो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खबर हमारे लिए सबसे बड़ी होती है। मुझे फिर से मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के बीच आऊँगा, इंटरेक्ट करूँगा, अपनी सारी बातों को आपसे साझा करूंगा, आप लोगों की भी मन की बात जानने की कोशिश करूंगा। फिलहाल शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए एंड रियली वेरी सॉरी आप लोगों के बीच में नहीं आ पाने के लिए। जल्द मिलता हूं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आप लोगों के पास बहुत अच्छी मेंटर है डॉक्टर पारुल, वो बहुत ज़्यादा जानकार है, अपने स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा जिलप रहती हैं एंड आई होप कि आप लोग उनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं उन पे आगे बढ़ोगे एंड डेफिनेटली आप लोगों का फ्यूचर, और शायद हमारे साथ मिलके हम लोग सब काम करेंगे और फ्यूचर जर्नलिस्ट या फिर जो भी डिफरेंट प्रोफेशन हैं जो मीडिया से जुड़े हैं, वहाँ पे आप लोगों से ज़रूर अच्छे अच्छे पद पर मैं आप लोगों को देखूंगा। जल्द मिलता हूँ, शुक्रिया। Further, we are delighted to welcome our guest of honor, Mr. Amit Bhatia ji, who is the editor of ABP Entertainment Live. With over 18 years of experience in the media industry, he has worked with almost every leading organization of the media world, Star News and TV Today Network. He is always known for his entertainment beat that is covered quite in a versatile manner. Mr. Bhatia has led numerous television projects and interviewed which not Bollywood star, including all the actor, actresses, and his current role that he is overseeing ABP live entertainment coverage, bringing his rich experience and sharp editorial insight to millions of viewers today. And sir is very popular on social media also. Give a huge round of applause for Amit ji. Last but not the least, I think young and promising professionals always have more impact on the minds of the generations to come. And one such media personality, Ms. Bhavna Sharma, is there with us, who though have a limited years of experience but made a very long way in this evolving media landscape. Ma'am is an anchor, presenter, voice-over artist, and a big name for the Doordarshan National. She has hosted numerous live and recorded infotainment and awareness campaigns. We are extremely honored to have your presence, Ms. Bhavna. I am very thankful to all the dignified guests who are here, who have accepted our invitation and spared their precious time, definitely during the time when so much is happening in the country since yesterday. Although I and Vishalji were discussing on phone last night whether this event is going to get possible or not, but I owe so many thanks to the panel members who are sitting here that you have made it anyways. Thank you very much, and thanks to all the students also for joining us. Thanks. Thank you, ma'am, for those inspiring words and being the guiding force behind DME Media School. It's now time to hear from our esteemed director, Professor Dr. Komal Vig, whose leadership has been instrumental in shaping DME's academic and cultural excellence. Please welcome ma'am with a huge round of applause. A very good afternoon. Honorable dignitaries on the dais, off the dais, dear colleagues,
and most endearing students. Today we have gathered here for the inaugural ceremony of Vritika. It is not only a fest for you, but yes, a great platform to showcase your talent and to learn new skills. We are extremely fortunate to have amongst us the galaxy of major media personalities among you. So I believe this is a very good opportunity for all my DME students to learn from them how they have reached to the heights and how to achieve the glories of life. They are the live example sitting in front of you. So I urge all my students to learn from them. We are also eager to listen to their experiences, their journey, and their blessings for my students. Here, in the coming 2 days, including today and tomorrow, we are holding multiple activities and events in the series for this fest. Of course, you have to enjoy all of them, but I must mention that you should understand the responsibility attached with this profession. Media, unsaid, but yes, now it is very popular. It is the fourth pillar of democracy. So you have to understand the importance, the value of journalism and media. And I wish the new venture we have started, the new ma'am has just mentioned about the value-based journalism. So this has to be imbibed not only in the curriculum, but also in soul and spirit. So with all my good wishes for your glorified career, I request you all to participate in this event and take home the greatest learnings of your life. Thank you and good day. Thank you, ma'am, for your words of encouragement and vision. कलम से जो लिख गया वो इतिहास बन गया, सच के साथ जो खड़ा रहा वो गणेश शंकर विद्यार्थी बन गया. These lines remind us that true journalism is not about reporting facts, it's about standing for truth, no matter the consequences. Before we move ahead, let's take a quick look at the special AV about our distinguished guests who are nominated by the jury to be the recipient of Ganesh Shankar Vidyarthi Award. Mr. Akhilesh Sharma, Managing Editor at NDTV, has a deep expertise in politics, government and storytelling. His career spans leadership roles in newsroom that comes from over 3 decades of experience. He has led coverage of major political developments and driven impactful storytelling across television and digital platforms, showing his commitment towards the world of journalism and his journey of bringing the truth to the people. Welcome to DME, sir. Mr. Rohit Ranjan, anchor at News Nation, is a well-known figure in the world of journalism. With a career with many prominent news channels, Mr. Ranjan has left his mark in the industry. His decade-long experience shine in his bold and daring opinions. Thank you, sir, for your presence at DME. Mr. Amit Bhatia is a prominent figure in the realm of journalism and has more than 15 years of experience in the world of media. ABP News leads the entertainment video in digital. He is interviewed with the big stars of Bollywood. His show, Bollywood Kisses, is well known with people, and his review of the latest film makes him a very interesting figure for the public. Thank you, sir, for being here with us today. Ms. Bhavna Sharma, an anchor at Doordarshan News, is master of all trades. With a career in creative roles such as voiceover artist, script writing, and travelogue writer, Ms. Sharma has no limits. She has demonstrated a history of working in civic and social organization as well. Her pursuits are not limited to creativity, but she is also proficient in academics with a history in writing and research. Thank you, ma'am, for coming here today. तालियों का कारवा रुकना नहीं चाहिए. And with this, I request our internal dignitaries to come forward and honor the awardees of Ganesh Shankar Vidyarthi Award. Dr. Parul Mehra ma'am, DG sir. One by one, I'll be requesting our dignitaries to come forward. I request DG sir to kindly felicitate Mr. Akhilesh Sharma sir.
Sir. Students, can we have a huge round of applause? I request Amit Bhatia sir to kindly come forward and receive the prestigious Ganesh Shankar Vidyarthi Award. Students, can we have a huge round of applause? I now request Ms. Bhavna Sharma ma'am to kindly come forward to receive the award. Thank you to all the esteemed guests and the dignitaries. And now it is an honor to invite Honorable Justice Bhavar Singh Sir, Director General, DME, to bless the occasion with his words of wisdom. Mr. Akhilesh Sharma, an eminent journalist and the chief guest of the event, Mr. Amit Bhatia, our guest of honor, and Ms. Bhavna, also another guest of honor, Dr. Komal Vij, Director of DME College, Dr. Parul Mehra, HOD Media Department, faculty members, dear students, ladies and gentlemen. First of all, I congratulate all the awardees, Mr. Akhilesh Sharma, Mr. Amit Bhatia, Ms. Bhavna ma'am, for having been conferred this Ganesh Shankar Vidyarthi Award. I am delighted to wish my best wishes to all of them, and I pray God that they prosper in their field of journalism and reach the zenith of their career. Friends, as the award is named, the journalist Ganesh Shankar Vidyarthi was a very promising freedom fighter. Besides being a journalist, please keep silence. This is for you to learn. Dr. Ganesh Shankar Vidyarthi was born in 1989, and despite financial hardships at home, he pursued his private education and initially was a professor, but then abandoned that profession and became a journalist. He launched his own newspaper, Pratap, and through that paper he expressed the freedom of expression
by supporting the cause of peasants, laborers. Kanpur, where he was living and staying, is known for mills where thousands and thousands of laborers worked. He always supported their cause and always opposed to the oppression and other aristocratic activities of the colonial rule in those days. He was a friend of peasants, particularly the laborers in the agricultural fields, and also he was supporting their cause. Though he was a Gandhian, as is said, and a follower of Gandhi, but also a great supporter of the revolutionists like Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad. He financially helped Bhagat Singh when he was in need of. And he is also known for the communal harmony. He helped the people to live with harmony, but it was unfortunate that in the communal riots between Hindus and Muslims, he was killed in 1931. Friends, he worked with complete independence, and he wanted to involve the masses, the poor laborers, workers, the farm laborers, agricultural farm laborers, and he wanted to, in fact, involve the masses in his freedom movement and also in the movement against oppression and the Britishers' aristocratic rule. Friends, I am also reminded of an anecdote, and I would like you all to learn from this a story of the Sudan country, which was at one point of time, it was in 1993, perhaps, the country was suffering from famine. There was no food for the children to support them. He saw a toddler, Kevin Carter. He was a journalist, photojournalist. He saw a toddler going towards the camp in search of food, but she could not walk. She was about 5 years old, and she had fallen down on earth. And a vulture was seeing that girl and waiting for her to die. And this Kevin Carter, who was a photojournalist, he clicked the photograph, and he was awarded Pulitzer Award. And initially his photo shoot was appreciated, but then he was trolled by other media persons, and it was said that instead of waiting for her to die, he should have made an attempt to protect her, to save her, to pick her up and take to the camps. By this psychological trauma, he committed suicide in 19th, I'm forgetting the year, but it was a tragic death. What I wish you to learn, that the journalists should never forget the human values and ethical values of the profession, which are very important for everyone, and to teach the lessons to the masses. Friends, with these words, I once again welcome all the guests and dignitaries and congratulate them once again. Thank you very much. God bless you all. Thank you, sir. Your presence truly inspires us to pursue knowledge with integrity and purpose. I now request Mr. Akhilesh Sharma, Managing Editor, NDTV, for sharing his experience from the world of journalism with our students.
सम्मानित मंच, आदरणीय जस्टिस भंवर सिंह जी, जिनका इतना प्रेरक उद्बोधन अभी हमने सुना पत्रकारिता के क्या सिद्धांत हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने समझाया और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि आगे चलकर आप जब पत्रकार बनेंगे और हमारी तरह किसी चैनल में, किसी अखबार में या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, तो आपको ये नहीं भूलना होगा कि सबसे पहले आप इंसान हैं और जो एथिकल वैल्यूज़ पत्रकारिता की हैं उनको आपको जीवन भर साथ में लेकर चलना है। तो आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छा उदाहरण देकर उसको समझाया, इसके लिए आपका आभार। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो तो है ही, लेकिन जो हमारी पीढ़ी है लगता है वो भी इन बातों को काफ़ी हद तक भूल चुकी है, तो इनको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही डॉक्टर कोमल विक, डायरेक्टर DME, धन्यवाद आपका आमंत्रण के लिए। डॉक्टर पारुल मेहरा, आपका भी धन्यवाद, आभार। आपने बहुत अच्छे शब्दों में समझाया कि क्या भूमिका है और ये आयोजन किस लिए किया जा रहा है। और साथ ही जहाँ जितने हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप सबका भी स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप जिस सोच के साथ यहाँ पर आए हैं, आपको लगता है कि एक ग्लैमर होता है पत्रकारिता में। आप जब टीवी पर बड़े बड़े चेहरों को देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, तब शायद आपको ये लगता होगा कि वाकई ये चकाचौंध वाली जो दुनिया है ये हमें मिल जाए तो क्या है। लेकिन होता ये है कि जो तस्वीर होती है सामने, उसकी अपना अलग तरीके की सच्चाई भी होती है। और ख़ास तौर से आज जो पत्रकारिता है उसकी सच्चाई कुछ और है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझाना चाहता हूँ ताकि आपको आगे चल के दिक्कतें ना आए, और अगर मान लीजिए कोई झटका भी लगे तो आपको उसमें कोई निराशा ना हो। सबसे बड़ी बात क्या है पत्रकार की, जो पत्रकारिता का धर्म है, और गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में बहुत अच्छे से सर ने समझाया कि जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, देश को उन्होंने एक दिशा दी थी, पत्रकारिता को एक दिशा दी थी। वो समय अलग था, तब पत्रकारिता जो थी वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई थी, उसका उद्देश्य था भारत को आज़ादी दिलाना। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद पत्रकारिता के मूल्य भी बदले, पत्रकारिता की दिशा भी बदली और पत्रकारिता की दशा भी बदली। आज स्थिति ये है कि टीवी चैनल्स की जो स्थिति है उसमें वो कंटेंट जो अपना बना रहे हैं, प्रोग्राम्स जो बना रहे हैं, उसमें कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा TRP आए। TRP आप सब जानते ही होंगे कि TRP क्या होती है, जो एक आंकड़ा है जिसके ज़रिए नापा जाता है कि टीवी चैनल कितना प्रसिद्ध है, कितना प्रसिद्ध नहीं है। तो वो कैसे बढ़े, उसके लिए दौड़ लगी हुई है। एक तरह की दौड़ है जिसमें कि अंधी दौड़ आप कह सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सोशल मीडिया पर आएँ, इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में आएँ, तो वहाँ पर हिट्स आपको कितने मिल रहे हैं, आपको कितने व्यूज़ मिल रहे हैं, आपको कितने लाइक्स मिल रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और इसके चलते जो सत्य है, जो पत्रकारिता का मूल धर्म है कि सत्य, सच को दुनिया के सामने लाना, वो उसका धीरे धीरे करके क्षरण हो रहा है। ये एक अलग तरह की डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि सत्य का विपरीत असत्य होता है, या तो आप सत्य बोलते हैं या फिर झूठ बोलते हैं। लेकिन जब आप सत्य को धीरे धीरे करके छुपाते हैं तो उसको सत्य का क्षरण बोलते हैं, डिकेइंग ऑफ ट्रूथ। तो वो डिकेइंग ऑफ ट्रूथ आज की तारीख में हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में उस पर पर्दा डाला जा रहा है, TRP की दौड़ में उस पर पर्दा डाला जा रहा है। आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो 2 घंटे 3 घंटे पहले की बात है, जब सारे टीवी चैनल्स पर बड़ी बड़ी सुर्खियाँ चली कि धर्मेंद्र, जो कि हमारे बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिनको सबको हम देख करके बड़े हुए हैं, वो बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, और ख़बर चलाई गई ब्रेकिंग न्यूज़ कि उनका निधन हो गया। उनकी बेटी ईशा देओल को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताना पड़ा कि मीडिया इस तरह की खबरें न चलाएं, मेरे पिताजी को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, वो रिकवर कर रहे हैं। हेमा मालिनी, उनको ये ट्वीट करना पड़ा कि इस तरह की खबरें मीडिया न चलाए। तो ये उदाहरण आपके सामने आज का है। कल दिल्ली के लाल किले पर बम ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर के जिस तरह के तथ्य सामने आए और जिस तरह की रिपोर्टिंग ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्टर्स ने की, वो भी उससे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स। आप बतौर रिपोर्टर फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पर कि ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पर आप जो इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में जो हुआ कि लोगों के शव हैं, उनके अंग बिखरे हैं, आप उन्हें दिखा रहे हैं। आप ये भी नहीं सोच रहे कि संवेदनाएं इससे कितनी हर्ट होंगी। जो एविडेंसेस हैं, क्रूशल एविडेंसेस, उनके ऊपर आप पैर रख करके चल रहे हैं, उन्हें आप हाथ में लेकर के छू रहे हैं, दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये दूसरे देशों में
जो विकसित देश हैं जहाँ पर कि जहाँ से कि मॉडल हमने इस टीवी जर्नलिज्म का लिया है, वहाँ पर ये अकल्पनीय है, अनएक्सेप्टेबल है। जहाँ पर भी कोई घटना होती है, कोई भी क्राइम होता है, कोई इस तरह का टेररिस्ट अटैक होता है, वहाँ पर उसको बांट दिया जाता है, उसमें यहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते, यहाँ पर आप जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम इन गलतियों को ना दोहराएं। मैं आपको जैसा कह रहा था कि मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको समझाना है, एक रास्ता दिखाना है। आप सब बड़े होंगे, आप कोई ना कोई एक जिम्मेदारी संभालेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो भी करें समाज को ध्यान में रखकर करें। ठीक है, ये प्रोफेशन बन चुका है, विद्यार्थी जी के टाइम पर ये राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए एक माध्यम था, आज ये एक पेशा बन चुका है। लेकिन हर पेशे के, प्रोफेशन के भी अपने उसूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। अनप्रोफेशनल ढंग से आप कोई काम नहीं कर सकते, अनएथिकल वे में जाकर आप कोई काम नहीं कर सकते। तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा। अब कुछ दूसरी बातें कर लेते हैं जो आपके काम आएंगी। आप जिस तरह से, मैंने यहाँ पे जब से आया हूँ, मेरा प्रवेश हुआ, विशाल भाई मुझे बहुत ज़ोर दे करके लाए हैं और मुझे देख करके बड़ी खुशी हुई कि जब से मैं आया हूँ उसमें लगातार जो स्टूडेंट्स हैं अपने हाथों में मोबाइल के ज़रिए या कैमरे के ज़रिए शूट कर रहे हैं। मुझे विशाल भाई स्टूडियो लेकर के गए, दिखाया, बताया कि किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स खुद ही पूरी अपनी फिल्म्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं। तो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छे तरह से हो रही है, बहुत ही प्रोफेशनल हाथों में आप हैं, बहुत सुरक्षित हाथों में आप हैं, और इसी तरह से आप आगे काम करते रहें। टीवी में जॉब मिल जाए अच्छी बात है, ना मिले कोई बात नहीं, आप आगे भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। जिस तरह से डिजिटल मीडिया का प्रचार प्रसार हुआ है, उसमें आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स तैयार कर सकते हैं, और जिस तरह की ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में हो रही है, आई एम श्योर कि आपको आगे जाकर उससे बहुत हेल्प मिलने जा रही है। आपके इस प्रोग्राम के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। 1 दशक किसी भी कार्यक्रम के लिए, किसी भी आयोजन के लिए बहुत बड़ा एक पड़ाव होता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपने 10 वर्षों तक इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली चलाया है, आगे भी आप इसी तरह से चलाते रहें, आगे भी 2 दशक, 3 दशक, बल्कि मैं कहूँगा हाफ सेंचुरी भी आप इसकी बनाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing the invaluable experiences from the world of journalism and guiding the students to how to see this world with their eyes and vision of journalism. I now welcome on stage Mr. Amit Bhatia, editor ABP Entertainment Live, to speak a few words to the audience. हाय गाइस, न्यूज़ में एक बात कही जाती है कि कोई चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। आधे घंटे का बुलेटिन चलता है, तो मेन पैकेज अखिलेश सर ने सुना दिया और सब कुछ कवर कर लिया, सर का थैंक यू कर दिया। तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आगे कुछ नया सुनाया जाए, या फिर आपको ऐसा ना लगे कि यार ये सब लोग तो एक ही जैसी बातें करते हैं, सब चैनल एक ही चीज़ चला रहे हैं, सभी लाल लाल दिख रहे हैं। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। देखो, कॉलेज ना बहुत बोरिंग होता है क्लासरूम के अंदर, बट कैंटीन में एक्साइटिंग होता है, दोस्तों के साथ एक्साइटिंग होता है। यहाँ भी अभी कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी लगे हुए हैं, हंस भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। तो एक किस्सा सुनाता हूँ जो अक्सर मैं सुनाता हूँ जाके, मैं भी बोर हो गया हूँ उससे, लेकिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपके काम आ जाए तो सुन लेना। तो हम भी आप ही की तरह जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज प्रोजेक्ट हमको मिला। आप लोगों को मिलता है कॉलेज प्रोजेक्ट? करते हो? ठीक है। ईमानदारी से करते हो? ठीक है। ईमानदारी से तो कोई बच्चा नहीं करता, खैर ठीक है, तो वो कहने की बात है। तो हमको प्रोजेक्ट मिला, आप लोग को भी मिला होगा, कि किसी सेलिब्रिटी को बुलाओ इंटरव्यू करने के लिए। तो उस वक्त तो हम सीख ही रहे थे, तो एक ही कोट पैंट था, तो जैसे तैसे टाई वाई का जुगाड़ किया और दिल्ली की क्रिकेट टीम से हमने 2 क्रिकेटर्स को बुला लिया। स्टूडियो बुक हो गया, विशाल सर बैठे हैं, वही हमारे टीचर होते थे। तो कहते स्टूडियो उसी दिन मिलेगा क्योंकि सबको देना है। जिस दिन शूट था उन दोनों क्रिकेटर्स ने आने से मना कर दिया। सारी लड़कियां ध्यान से सुन लें, क्योंकि जिस आदमी का नाम आने वाला है वो आपका क्रश हो सकता है, और लौंडे भी ध्यान से सुन लें, क्योंकि जो उसकी बीवी है वो तुम्हारा क्रश हो सकती है। तो 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम छोड़ दो। तो उस दिन फोन आया उन क्रिकेटर्स का कि भाई वो तो आ नहीं पाएंगे, 2 नए लड़के भेज देते हैं, तो आप कर देख लीजिए। अभी क्या है, 0 नंबर मिलते, हमको लगा कुछ कर लेते हैं, नहीं तो हमारी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ठीक है, तो वो 2 लड़के आए, उनको विशाल सर ने कहा अभी बाहर बैठो, स्टूडियो सेट हो रहा है। इंटरव्यू हुआ, खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, हमको आगे स्टार न्यूज़ में नौकरी मिल गई।
4 साल बाद टीम इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता और पता चला कि जिस बंदे का इंटरव्यू हमने वहां किया था वो विराट कोहली था। तो कभी भी आप कॉलेज में कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इट डजंट मीन, कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है यार ये टीचर लोग क्या फालतू में बोलते रहते हैं, मतलब क्या फायदा इतनी प्रेजेंटेशन बनाने का, क्या ही फायदा, व्यूज तो रील पे ही कमाने हैं। ठीक है, अल्टीमेटली तो मतलब आजकल जितने जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, इवन मैं बहुत कई सीनियर जर्नलिस्ट में भी ये चीज़ देखता हूँ कि वो एक रील बस किसी तरीके से वायरल कर देना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक रील अगर वायरल हो गई तो हम इन्फ्लुएंसर बन गए, बट ऐसा नहीं होता। जब आप डेस्परेटली किसी चीज़ के पीछे भागते हो ना, आप इंटरव्यू में उस आदमी से बुलवाना चाहते हो कि कुछ तो बोल दे भाई, कि ताकि वो चल जाए, तो वो कभी नहीं बोलेगा। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड यूर गेस्ट। अभी आप कंगना रनौत और अनन्या पांडे का इंटरव्यू एक टेंजेंट पे नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत अलग अलग है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वे। या फिर मान लो एक्टर्स की भी बात करें तो आप जावेद साहब का इंटरव्यू जब आप करोगे तो वो अलग तरीके से करोगे, फिर राजपाल यादव का करोगे तो वो अलग तरीके से करोगे। अच्छा, एक आपको और एग्जांपल देता हूं। कई बार क्या होता है कि आप में से वैसे कितने लोग जर्नलिज्म करना चाहते थे, कितने इसीलिए आए कि कहीं एडमिशन ही नहीं मिल रहा था तो सोचो जर्नलिज्म ही कर लेते हैं। ज्यादातर मैंने भी ऐसे ही किया था, मुझे बीएससी में एडमिशन मिल रहा था, क्योंकि बीएससी में उस वक्त कोई एडमिशन नहीं लेता था, तो किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो लोग बोल रहे वो केएमसी में पढ़ता है बच्चन साहब का कॉलेज, किसी को क्या पता कि नंबर ही कम आए थे। तो एक किस्सा सुनाता हूँ। अक्षय कुमार किस किस को पता है? एकदम मतलब अक्षय कुमार डिसिप्लिन्ड है बहुत, तो थोड़ा बहुत उसका डिसिप्लिन भी फॉलो किया करो। तो व्हेन अक्षय कुमार वाज अ स्ट्रगलर ना, तो एक बार सुबह 6 बजे उसके घर में फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन करने वाले ने जो है उसे खूब उल्टा सीधा बोला कि तुमको बड़ी मुश्किल से हमने एक मॉडलिंग असाइनमेंट दिलवाया था और तुम तो आए नहीं, ये वो, तुम लोगों को कदर नहीं है। तो अक्षय कुमार ने कहा कि भाई ये तो शाम की 6 बजे की फ्लाइट थी ना। तो उसने कहा नहीं, तुम्हारी सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी और अभी तक तुम घर बैठे हुए हो, अब ये असाइनमेंट तुम्हारे हाथ से चला गया। तो अक्षय कुमार उस वक्त भाई जैसे तैसे तो गुजारा चलता था, उस वक्त कोई स्टार तो बने नहीं थे, वैसे उनका नाम भी राजीव भाटिया है, मेरा अमित भाटिया। तो जब भी हम मिलते हैं तो ये आपस में डिस्कस करते हैं भाटिया भाटिया। तो अक्षय कुमार मायूस हो गए कि यार बड़ी मुश्किल से तो कोई काम मिला था और ये भी हाथ से चला गया। तो बेचारे घूम रहे थे मायूस, तो एक मेकअप मैन मिले उनको, प्रमोद सावंत। उन मेकअप मैन को एक प्रोड्यूसर ने कहा था मेरी फिल्म के लिए हीरो ढूंढ के ला, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। अब ये दोनों मायूस लोग आपस में मिल गए। बोले, अक्षय ने उनसे पूछा दादा क्या हुआ, उन्होंने बोला ऐसे। तो कहले मुझे ले जाओ। बोले दिखता तो तू भी ठीक ठाक है। तो वहां पे ले गए अक्षय कुमार को, प्रोड्यूसर से मिलवाया। प्रोड्यूसर ने उनको 3 फिल्मों के लिए साइन किया, उनको चेक काट के दिया, और जिस टाइम पे चेक दिया घड़ी में 6 बज रहे थे। तो अगर वो शाम 6 बजे की फ्लाइट ले लेते तो फिर 3 फिल्में नहीं मिलती। तो लाइफ में कई बार कुछ ना कुछ छूटता ही है ना। दीपिका पादुकोण का डायलॉग, कुछ तो छूटेगा बनी, तो देखी होगी। अबे कैसे जेंजी हो तुम यार, एकदम ठंडे मतलब जिस तरह से भी कुछ ठंडी फिल्मों का ट्रेलर आता है वैसे, पर कोई एक्साइटमेंट नहीं है आपके अंदर। तो यू हैव टू बी वेरी एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि ये अभी आपको लग रहा है कि अरे कॉलेज वालों ने कहाँ हमें ला के बिठा के रख दिया, बट यू नो हम भारतीय विद्या भवन में जब पढ़ते थे तो वहाँ पे एक ऋषिकेश में वर्कशॉप होती थी, 10 दिन के लिए हमको लेके जाते थे। विशाल सर भी वहाँ पे हमारे टीचर थे। तो हर रोज एक नया प्रोजेक्ट होता था, एक दिन में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता था। उसमें हमने जो सीखा वो आज तक काम आता है। तो कॉलेज में और आपके यहाँ तो कितना अच्छा स्टूडियो है यार, हमारा भी उतना अच्छा नहीं है। कई बार तो मैं सोचता हूँ अपने इंटरव्यूज यहाँ आके कर लूँ। तो यू हैव टू मैक्सिमाइज दैट। जबकि हमारा स्टूडियो तो आप जाके देखना, एबीपी की बात नहीं कर रहा, भारतीय विद्या भवन की बात कर रहा हूँ, अभी भी वैसा ही है। तो इंटरनेट पे डालना विराट कोहली फर्स्ट इंटरव्यू, तो आपको स्टूडियो दिखेगा। तो आपके पास फैसिलिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे हमने देखा कैमराज, अच्छे कैमराज हैं, उनसे रील्स बन रही हैं। अभी हम एंटर किए, जैसे ही बैठे चाय पी रहे थे कि खट से एक रील में हमको टैग कर दिया गया कि लो आ गए। तो दिस फास्ट यू आर डूइंग। तो लाइफ में कुछ ना कुछ छूटता भी है, और कई बार हम जो करते हैं वो उस वक्त हमें नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, बट आगे जाके वो हमको
फ्रूट्स दे देता है। जैसे बाद में मैंने अनुष्का भाभी को बोला कि भैया का पहला इंटरव्यू मैंने किया था जब मैं फिल्म जर्नलिस्ट बना, तब तक तो मुझे नहीं पता था। तो ये ज़रूरी है। और दूसरा, वायरल होने के पीछे मत भागना, ठीक है, क्योंकि वायरल तो पुनीत सुपरस्टार भी है, बट क्यों है वो आपको पता है। तो और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पड़ोस वाली आंटी की बेटी जो है वो मेकअप ट्यूटोरियल कर रही है तो मैं भी मम्मी वही करूँगी, मुझे भी वही करवा दो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मेरे पापा को मुझे डॉक्टर बनाना था, उसकी वजह ये थी कि उनके बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर थे और हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर हुआ करते थे। उस वक्त उनकी फीस थी 40 रुपये। तो उनको जैसे 50 का नोट पेशेंट देता था तो 10 की गड्डी उनकी बीवी उनको पकड़ा देती थी, तो 10 वापस करते थे, 50 आते थे। तो मुझे लगता था यार मतलब इसमें तो खूब पैसा है। तो मैंने कहा नहीं, हाँ हम भी डॉक्टर बनेंगे। अब दिमाग था नहीं उतना, तो 2, 2.5, 3 साइंस भी ले ली, लटकते लटकते ऐसे तैसे पास हुए। मतलब ऐसी परसेंटेज है कि वो तो कहीं 11th की पूछते नहीं है, कहीं पे पूछ लें तो शर्म आ जाए बताने में। तो उसके बाद फिर अपने इंटरेस्ट का जब फील्ड मिला तो चीज़ें अच्छी हुई। तो आई थिंक वही चीज़ करना जिसमें इंटरेस्ट हो। कुछ लोगों को कैमरा में इंटरेस्ट होगा, कुछ को एडिटिंग में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हर कोई एडिटिंग नहीं कर सकता और हर कोई एंकर नहीं बन सकता। ये आई थिंक क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि हम एंकर बन जाएंगे और एकदम लाल किले पे पहुंचेंगे, ब्लास्ट पे मैं अखिलेश शर्मा NDTV, और मतलब बट वो आपको अखिलेश शर्मा बनने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मत सोचना कि एंकर और रिपोर्टर ही होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग कैमरा के पीछे काम करते हैं। और कई बार जब आप कैमरा के पीछे काम करते हो तो आप चीज़ों को समझते हो कि कैमरा के आगे क्या करोगे। अखिलेश सर भी मुझे लगता है सर कैमरा के पीछे आप स्क्रिप्टें लिखते हैं और बहुत कुछ करते हैं, बट आपको दिखता है वही वाला जो चमक रहा है, तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। कई बार एक एग्जांपल देता हूं, आप इंटरव्यूज देखते होगे, पवन सिंह को कौन कौन जानता है? सब लोग जानते हो, गाने वाने सुने पवन सिंह के? कौन सा वाला? सारे? एक बताना। लगावे लू जब लिपस्टिक। तो पवन सिंह का एक बार मैं इंटरव्यू करने गया लखनऊ, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना क्योंकि तुम लोग को भी इंटरव्यूज करने जाना पड़ेगा अपने चैनल्स की तरफ से। पवन सिंह का इंटरव्यू करने में एक बार गया लखनऊ। अब कंपनी ने कहा कि आज जाओ ट्रेन से, कल वापस आना, ठीक है। तो हम चले गए कैमरामैन के साथ। अब वहां गए तो पहले दिन तो पता चला कि शूटिंग ही कैंसिल हो गई। भाई पवन जी का मूड नहीं है शूट करने का। तो मैंने कंपनी से कहा कि आप एक काम कीजिए, ट्रेन एक दिन आगे खिसका दीजिए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खिसका, क्योंकि हम लोग बजट्स में काम करते हैं। चैनल जो है वो हमारा नहीं होता है, हम एम्प्लॉयज़ हैं चैनल के, तो सबके अपने अपने बजट्स होते हैं। कि ऐसा नहीं कि कैसे मर्जी आप हवाई जहाज़ में कहीं भी किसी का इंटरव्यू करने चले जाओगे। सेकेंड डे आया, सेट पे पवन जी दिखे तो बोले भैया आज ना मूड नहीं बन रहा है, मतलब हम आपके साथ ना आराम से इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कब करेंगे? बोले कल सुबह करते हैं। मैंने कहा 2 बजे की मेरी ट्रेन है और अब मैं अपनी कंपनी को नहीं बोल सकता हूं कि ट्रेन आप आगे करवाइए। हाँ आप आ जाइए। हम सुबह 6:30 बजे उनके होटल पहुंच गए, ठीक। वेट कर रहे हैं, पवन जी सो रहे हैं, ठीक है। एक चेला, दूसरा चेला, तीसरा चेला, चौथा चेला, मतलब दिल्ली से लेकर पटना सब जगह फ़ोन घुमा दिए। अल्टीमेटली 12:30-1 बजे पवन जी जिम में प्रकट होते हैं, ठीक है। तो भैया अभी करते हैं बस। तो अल्टीमेटली मैंने कहा कि अब तो जाना पड़ेगा क्योंकि 2 बज गए। नहीं हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपकी टिकट करवाएंगे, ठीक है। मैंने कहा नहीं मेरे साथ कैमरामैन भी, उसकी भी टिकट करवाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने मेरी फ्लाइट की टिकट करवाई रात 11 बजे की। तो मैं समझ गया कि अभी ये 4 घंटा और वेट करवाएगा, ठीक है। उसके बाद होटल वाले कहते हम तो पैसे लेंगे आपसे इंटरव्यू करने के, हम जगह नहीं देंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि अरे जहाँ बोल रहे हैं वहाँ पे आप सेटअप इनको लगाने दीजिए। लगाया, इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत वायरल हुआ। बहुत सारे यूपी बिहार के लोग जो हैं वो मुझे उसी इंटरव्यू से जानते हैं, जबकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए होंगे। अब मैंने जब इंटरव्यू शुरू किया तो मैंने उस इंटरव्यू के शुरू में ही बोल दिया कि आपकी वजह से मुझे 2 दिन यहाँ वेट करना पड़ा और आपने मेरी टिकट करवाई थी। तो समटाइम्स यू हैव टू वेट फॉर दैट लॉन्ग, बट वो अगर मैं वेट ना करता, अगर वो ना होता, तो आई थिंक वो मेरा एक ऐसा इंटरव्यू रहा जो खूब चर्चा में रहा। तो एट टाइम्स यू हैव टू वेट काफ़ी। अभी आजकल क्या होता है, अभी हमारे यहाँ पे एक
लड़की आई इंटर्नशिप करने, मैंने उसको बोला जाओ बी प्राक का इंटरव्यू कर लो। सोचो बी प्राक, कौन कौन जानता है बी प्राक को? सब जानते हैं। असली नाम पता है उसका? गूगल करना पता चलेगा, ठीक है। तो कहती नहीं सर मैं ना लेट हो जाऊंगी रात को, इसलिए मैं बी प्राक का इंटरव्यू नहीं करने जा सकती। कल दोपहर को जो आप बोल रहे हो ना मौनी रॉय वाला, मैं वो करूंगी। अब सोचो जिसको बी प्राक का इंटरव्यू करने को मिल रहा है इंटर्नशिप में, और जबकि उसको कैब भी मिल रही है आने के लिए, कैब भी मिल रही है जाने के लिए, उसने मना कर दिया। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी मिल सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इंटर्नशिप में नहीं मिलेगी, या हो सकता है कॉलेज में ही कुछ ऐसी चीज़ हो कि आप किसी का इंटरव्यू लो, वो आदमी आपको अपने चैनल में ले जाए। तो हर अपॉर्चुनिटी जो है उसको आई थिंक भुनाना चाहिए। कुछ भी चीज़, 2-3 एग्जाम्पल मैंने, मतलब मैं तो फिल्मी आदमी हूँ तो मैं तो फिल्मी किस्से ही सुना सकता हूँ। तो 2-3 आदमी, जैसे अखिलेश सर ने अभी धर्मेंद्र साहब का जिक्र किया, वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबली हमें हैंडल करनी पड़ती हैं ऐसी खबरें। जैसे एक बार बच्चन साहब को चोट लगी थी कुली के सेट पे, तो उस वक्त कहते हैं अस्पताल के बाहर जर्नलिस्ट में होड़ मची थी कि पहले मैं ब्रेक करूंगा, जबकि बच्चन साहब आज तक सही सलामत हैं और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले 20-25 सालों में वो सही सलामत रहें। तो यहाँ आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा, ठीक है। औरी को कौन जानता है? अब तुम्हारे मतलब की बात हो रही है, हाथ ऊपर उठा रहे हो, ठीक है। तो औरी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। औरी ने एक ऐसी मार्केटिंग अपनाई कि मैं करता क्या हूं, जबकि वो कुछ नहीं करता, ठीक है। वो कुछ नहीं, सलमान खान भी हैरान है, उसके 5 मैनेजर हैं, कह रहा मेरा एक भी नहीं है, ठीक है। तो आज की डेट में नए मार्केटिंग टूल्स आ रहे हैं। सैयारा किसने देखी थी? कौन कौन रोया था सैयारा देख के? तो इसका मतलब सबको वैसे ही रुलाया गया था वहां पे, ठीक है। वो काम मार्केटिंग का था, लेकिन वो मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग थी कि मेरे ऑफिस में हमारा आउटपुट हेड भी आके पूछ रहा है कि अरे यार इतनी बढ़िया फिल्म है क्या कि लोग रो रहे हैं। उन्होंने कंपेल कर दिया आपको, ठीक है। तो आपको नए तरीके सोचने पड़ेंगे कि हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मार्केटिंग में भी जाओगे, देखो अभी जो सोचा है बनेंगे, हो सकता है आगे जाके वो ना बनो, कुछ और ही बनो। तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम करो, और मायूस मत हो यार। कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है कभी भी आ जाती है, और एक अपॉर्चुनिटी चली भी गई तो ऐसा नहीं है कि लाइफ वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। बहुत हो गया, भावना वेट कर रही है, बोले जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। Thank you, sir, for such an engaging and motivational address. Now I request Ms. Bhavna Sharma, anchor at Doordarshan, to address the gathering. Well, very good afternoon, everyone. बेहद खुशी होती है जब आप जो काम कर रहे हैं उसको सराहा जाता है, एक पहचान दी जाती है, इस तरीके से सम्मानित किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं सर झुकाकर हाथ जोड़कर मैं आप सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और यहाँ मंच पर आप देखेंगे मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, तो उनके सामने मैं तो क्या ही अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूँ। लेकिन अमित जी, आपको सुन के मज़े बड़े आ रहे थे, मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर रही थी अपनी बारी का, क्योंकि आ जाइए क्योंकि क्या है ना, ज्ञान जो है, आपने 3 इडियट्स देखी है ना, ज्ञान सब जगह है, बटोर लो। तो मैं भी अभी तक फील्ड में सीख ही रही हूँ अपने सीनियर्स से, हर किसी से जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे जूनियर्स से, जो इंटर्न्स आते हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि टैलेंट हर किसी के अंदर है, ज़रूरत होती है पहचानने की। और मेरे लिए जब मैं बात कर रही हूँ ना टीवी एंकरिंग की, तो मेरे लिए टीवी एंकरिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये तो मेरा वो सपना है जो मैंने कभी देखा था और आज मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। और अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। तो अगर आप भी सपना देख रहे हैं तो आप सभी को मुबारकबाद, आप निश्चित ही वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन ज़रूरी है हार्ड वर्क, मेहनत, वो करना मत छोड़ना। चाहे कितने ही रिश्तेदार आपके मीडिया में हों, लेकिन आपको आपकी पहचान आप ही दिला सकते हैं और कोई नहीं। और बात अगर मैं करूँ दूरदर्शन की, क्योंकि एक तरफ दूरदर्शन है और दूसरी तरफ है प्राइवेट मीडिया,
तो प्राइवेट मीडिया से दूरदर्शन बहुत अलग तरीके से काम करता है। आप देखेंगे उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग है, कंटेंट उनका अलग है। कई बार मुझे सुनने को मिलता है दूरदर्शन कौन देखता है, तो मैं कहती हूँ आप नहीं देखते, अच्छी बात है, मत देखिए, आपको देखना भी नहीं चाहिए, पर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाएंगे अपनी लाइफ में अगर दूरदर्शन नहीं देखेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, मेरे जो शोज़ होते हैं, लाइव फोन इन शोज़ भी होते हैं, वहाँ दुबई से कॉल आते हैं, पाकिस्तान से कॉल आए हैं। आप इमेजिन कीजिए, दिल्ली के इंडिया के दूर दराज के इलाकों से कॉल्स आते हैं, वो अपनी समस्या शेयर करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि अब क्या करना है आगे। तो मेरे लिए जो ये टीवी एंकरिंग है ना, ये एक ज़रिया है इन्फॉर्मेशन आगे देने का, एक सांत्वना देने का, उनको मुस्कान देने का, साथ ही उनका हौसला बढ़ाने का। जिस तरीके के शोज़ मेरे रहते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा उन सभी चीज़ों से। हर मोमेंट पे आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है। जब हम मीडिया लाइफ की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटीज़ बहुत हैं, पर आप ये बात याद रखिएगा, अनसर्टेनिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी। जिसने उस अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी बना लिया ना, कहते हैं ना चांस पे डांस, जिसने वो चांस पकड़ लिया वो आगे निकलेगा। और आज मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। कभी मैं भी आपकी तरह वहाँ बैठी थी, मैं भी सुना करती थी जब हमारे कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में अखिलेश सर जैसे दिग्गज आया करते थे, हम उनको देखा करते थे, सपना देखा करते थे हम वहाँ कब पहुँचेंगे। विशाल सर वो मेरे कुलीग भी रहे हैं और मेरे टीचर भी रहे हैं, तो वो उन्होंने हमें पंख दिए कि तुम पहुँच सकते हो वहाँ तक, कोशिश करो, मेहनत करो। तो हमने कोशिश की, जी जान से कोशिश की। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स, मेरे सीनियर्स मीडिया में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं कभी कंपटीशन किसी और के साथ नहीं रख रही हूँ, मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। क्योंकि दूरदर्शन ना तो टीआरपी के पीछे भागता है और वायरल होने का तो मैं सोचती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने काम को एंजॉय कर रही हूँ। मेरी एक जिम्मेदारी है, अगर मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ तो जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, और उस जिम्मेदारी को समझते हुए ही मैं अपना काम करती हूँ। हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दूरदर्शन जैसे प्लेटफॉर्म पर हैं, आपको बहुत सारी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। अपनी भाषा पर आपको कंट्रोल करना पड़ता है। वो जो शब्द चयन होते हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ कंटेंट, आपको वो सोच समझ के आगे इम्पार्ट करना होता है। और जब आप वो जिम्मेदारी समझोगे तो आप उसको बेहतर कर पाओगे। और जैसा अभी हमारे सीनियर्स ने बताया कि आप कभी एक चीज़ पर स्टिक ना रह के ना हर चीज़ को सीखने की कोशिश करें। मेरी जो शुरुआत हुई थी प्रिंट मीडिया से शुरुआत हुई। मैंने पंजाब के हिस्ट्री में एज एन इंटर्न मैंने शुरुआत की, फिर मुझे उन्होंने ट्रेडी कॉरेस्पॉन्डेंट बना दिया। धीरे धीरे मेरा सफ़र आगे बढ़ता रहा, मैं और कुछ न्यूज़पेपर्स के साथ जुड़ी, उसके बाद मैं कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ जुड़ी। उसके बाद मैंने सोचा कि वो एक चेंजिंग फेज़ था कि अब प्रिंट से निकलकर अब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाया जाए। देन शुरुआत हुई प्राइवेट मीडिया के साथ, फिर हम डिजिटल हो गए, उसके बाद दूरदर्शन भी है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, समझी, और अब मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके से दूरदर्शन काम करता है, किस तरीके से बाकी का मीडिया काम करता है। जिम्मेदारी सबकी है, राइट? एक नोबल प्रोफेशन है, जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके के जर्नलिस्ट, किस तरीके के मीडिया पर्सन बनना चाहते हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो तो आपका काम अच्छा होगा। जिम्मेदारी से भागोगे, मेहनत से भागोगे, तो आप वहीं रह जाओगे जहाँ पर आप अभी हो। ओके, तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी गुड विशेस, और मैं यही कहना चाहूँगी कि डरना मत। लोग आपको जितना डीमोरलाइज करें, जितना डीमोटिवेट करें, कभी घबराना मत। हम आज तक ये चीज़ें फेस करते हैं, लेकिन क्या हम रुके? हम तो आगे बढ़ते रहते हैं। आप यहाँ जितने लोगों को देख रहे हैं, हर प्रोफेशन में ऐसा है ना। तो बात यह है कि
आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे निकालनी है, कैसे अपना करियर बनाना है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड आई होप कि आने वाले टाइम में आप सभी यंग टैलेंट को मैं बहुत अच्छा काम करते हुए देखूंगी और निश्चित ही शायद फील्ड में मुलाकात भी हो जाए। थैंक यू सो मच। मैम ने बहुत ही अच्छी एक बात कही कि अनसर्टनिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक ये बात हम सबको ध्यान भी रखनी चाहिए। थैंक यू मैम फॉर योर ब्यूटिफुल एड्रेस एंड नाउ आई रिक्वेस्ट मिस गरिमा जैन, co-convener of Ritika 2025 and academic coordinator Media School, to share more about this event. थैंक यू सो मच दिव्या मैम। बड़ा ही अजीब लग रहा है क्योंकि जनरली एंकरिंग मैं कर रही होती हूँ, लेकिन इस बार यहाँ की स्पीच देनी है तो इट्स क्वाइट डिफरेंट। मेरी स्पीच की पहली लाइन ही यही थी कि दैट आई एम वेरी हैप्पी टू सी द यंग फेसेस ब्राइट शाइनिंग, बट अनफॉर्चुनेटली nobody is smiling, everybody is busy in their phone. So I would request, please keep your phone down, look at all of us here on the stage, give a huge round of applause for our panelists and a beautiful smile everyone. थैंक यू सो मच। दो जिम्मेदारियों का नाम लिया दिव्या मैम ने मेरे नाम के साथ। पहले तो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, अगर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के ज़रिए अगर समझाऊं कि वृत्तिका क्या है, तो वी हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड इवेंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर एक हैंड्स डाउन ट्रेनिंग देने के लिए हम इस इवेंट को करते हैं, जहां पहला सेगमेंट जैसे ये है जहां हम मीडिया इंटरेक्शंस रखते हैं, गणेश विद्यार्थी अवार्ड्स होते हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव वेरियस कॉम्पिटिशन्स लाइक डिबेट, ओपन माइक एंड film documentary, short films, and then reel making, photography, and various other competitions. Nukkar natak hote hain, and lastly we end this event on a lighter and entertaining note, jahan music band, stand up comedians इन सबको बुलाते हैं। तो अगर as an academician मैं ये बात बोलूँ तो मेरे लिए आप सब फेल है इस समय, लेकिन जब मैं को कन्वीनर की तरह बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि आप सब टॉप करेंगे, because I can see the struggle that you all have gone through to prepare this event. So a huge round of applause for all of you. क्योंकि मकसद सिर्फ यही है कि आप सीख सके कि एक्चुअल इंडस्ट्री में होता क्या है। स्पॉन्सर लाने से लेकर एक इवेंट को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करना, ये सब आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं आप सबकी हूँ, आप सब पैनलिस्ट की, कि आपके मोटिवेशन की वजह से हम इस इवेंट को कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर एंड आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी भरते हैं। प्लीज़ वेट फॉर द कल्चरल परफॉर्मेंसेज विच आर अबाउट टू स्टार्ट. So let's enjoy Vritika 2025. Thank you so much, everyone. And as ma'am said, we will be having a cultural program here as well. But before that, I would request Vishal sir to come on the stage, Dr. Vishal Sahai sir to come on the stage and deliver his vote of thanks. नमस्कार। सर्वप्रथम दिव्या मैम, थैंक यू वेरी मच, कॉल मी डॉक्टर। सो रिसेंटली मैं डॉक्टर बना हूँ। सम्मानित मंच और आप देवी और सज्जनों, मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए बोला गया, जो मैंने पारुल मैम से लड़के लिया। मैंने कहा मैं वोट ऑफ थैंक्स दूंगा, तो मैं बोली अच्छा ठीक है दे दो आप। तो मुझे मालूम है कि हम लोग जिस फील्ड में हैं और जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उसे कहते हैं मीडिया। 24/7 जो कल पारुल मैम मुझे फेस करने को मिला, रात को 1:30 बजे 2 बजे भी हम लोग टेंशन में घूम रहे हैं। रोहित सर का फ़ोन आया 1:30 बजे, यार ऐसी समस्या आ गई। अखिलेश सर ने बोला देख 5:30 बजे मुझे एनडीटीवी पहुंचना है। अमित ने बोला धर्मेंद्र जी की हेल्थ के ऊपर मैं डिपेंड है। एक चीज़ बहुत अच्छी थी, भावना बड़ी कूल थी क्योंकि वो दूरदर्शन था। उसने बोला मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं आराम से पहुंचूंगी। तो मुझे मालूम है जो आज सभी लोग
कीमती समय आज उन्होंने हमारे लिए निकाला। ये किस तरीके से निकाला ये मैं खुद जानता हूँ। अखिलेश जी से मेरा संबंध बहुत पुराना है, मैं जानता हूँ वो किस तरीके से बिजी रहते हैं। मैंने जब हम सभी लोग बैठ के अवार्ड का डिसाइड कर रहे थे, सब लोग जूरी मेंबर, तो अखिलेश सर का जब नाम आया तो मैंने एक फ़ोन किया सर को कि सर ऐसे ऐसे आपको नॉमिनेट हम कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़े सहजता से कहा कि यार ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं कमिट करता हूँ कि मैं आऊँगा। तो तहे दिल से डीएमई परिवार की तरफ से थैंक यू वेरी मच सर, आपने उस कमिटमेंट को निभाया। जबकि मुझे पता है एनडीटीवी जैसे चैनल में किस तरीके की व्यस्तता रहती है, किस तरीके से, और प्राइम टाइम एंकर के लिए और एज ए मैनेजिंग एडिटर खबरों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अमित के साथ थोड़ा मैं हक जता लेता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ आना है, जबकि अमित का कल फ़ोन आया था, देखो सर मैं धर्मेंद्र जी का जो हेल्थ है उस पर बड़ा डिपेंड करता है। तो रात को करीब 11-12 बजे मैंने उसे खबर भेजी अभी थोड़ी ठीक है तबीयत। तो फिर सुबह जब गरिमा मैम का फ़ोन आया कि मुझे पता लगा है कि शायद उनकी डेथ हो गई है, मैं टेंशन में आ गया। मैं राह चलते धीरे से पूछा, बोला सर अब परेशान मत होइए, मैं आऊँगा ज़रूर कैसे भी हो। तो थैंक यू अमित, आपने आज आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और जिस तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काम कर रही है, और मोस्ट ऑफ द देम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग तो सर मुझे लगता है अखिलेश सर कम होंगे, पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले ज़्यादा होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, आपको सीखने की ज़रूरत है। दूसरा अखिलेश शर्मा बनने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच अमित भाई आपका। भावना आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। दूरदर्शन की तरह इनके मुस्कान, उनकी सौम्यता हमेशा उनके चेहरे पर दिखती है। शांत स्वभाव की रहती थी, पर इतनी शांत ये एज ए स्टूडेंट नहीं थी, और ये मेरे से बहुत लड़ती थी कि मेरे को एंकरिंग करनी, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, आप दूसरे लोगों को मौका क्यों दे रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर ईश्वर इनको इतनी बड़ी कामना देंगे कि ये दूरदर्शन जैसे नेशनल चैनल की एंकर बनेगी। सो तहे दिल से भावना आपका धन्यवाद। साथ ही साथ डीएमई परिवार के मुखिया हमारे जस्टिस धोवर सिंह सर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने बात शेयर की कि मैं डॉक्टरेट बन गया, तो सर ने एक मैसेज मुझे भेजा, आओ 11:30 बजे मिलते, कप चाय पीते हैं। सर के साथ बैठ के जब मैंने इनके पैर छुए सर के, तो सर ने मुझे आशीर्वाद दिया ऐसे आगे बढ़ते रहो। तो वो जो मुकाम होता है जब अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का जब आशीर्वाद हमें मिलता है, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। पैसा वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं, पैसा हम फिर भी कमा लेंगे, लेकिन बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। और ये सीखने वाली चीज़ है कि सर जिस तरीके से चीज़ों को पढ़ के प्लानिंग, आज भी सर रिसर्च करके चीज़ों को बोलते हैं, ये हम सबको सीखने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका आशीर्वाद हमारे परिवार की ओर हमेशा बना रहे। हमारी डायरेक्टर मैम कोमल मैम, मैंने पहली डायरेक्टर ऐसी देखी हैं जो वृतिका में एज ए स्टूडेंट की तरह बिल्कुल इन्वॉल्व थे। हर चीज़ में गरिमा मैम के साथ बात कर रही हैं, पारुल मैम के साथ बात कर रही हैं, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ये पहली बार हमने देखा। और जिस तरीके से मैम का इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ के लिए था, हर छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ों का मैम ध्यान रखती हैं। तो मैम तहे दिल से धन्यवाद आपका, और ऐसा मार्गदर्शन आप हमारे इस डिपार्टमेंट का स्कूल, मीडिया स्कूल पर हमेशा बना के रखें। साथ ही साथ इस फेस्ट की कन्वीनर डॉक्टर पारुल मेहरा मैम, हमारी जो एचओडी मैम है, जिनको मैं बहुत तंग करता रहता हूँ, भाई मैम ये गड़बड़ है, यहाँ ये ठीक करना है, वहाँ वो ठीक करना है, कूल एंड काम रहती हैं। मैम ये कहती हैं बस सब कुछ ठीक है, बस टाइम से शुरू कर लेना, सब कुछ हो जाएगा। खूब मैम डांट भी देती हैं हम लोगों को, थोड़ा सा मुझे कम डांट पड़ती है, बाकी लोग को ज़्यादा पड़ती है, बट पड़ती है। तो लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को समेट के रखना, परिवार को समेट के रखना, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब परिवार बड़ा हो या छोटा हो, पर उनको जब बना के रखना पड़ता है, चीज़ों को सहेज के रखना पड़ता है, तो उसके लिए कोमल मैम आपका भी धन्यवाद, सॉरी पारुल मैम आपका भी धन्यवाद। माफ़ी चाहूँगा, मैं शब्दों के खेर में फंस गया। और इसी के साथ मैं को कन्वीनर गरिमा मैम का भी धन्यवाद, जिस तरीके से उन्होंने रात दिन लगा के और स्टूडेंट की टीम बना के काम किया। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुझे मालूम है कि रात रात तक आप सबने काम किया है,
और अभी 2 दिन का ये फेस्ट है, आज भी चलेगा और कल भी है। कल आपके लिए काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम और मनोरंजन की काफ़ी चीज़ों को हम लाएंगे, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी जो फ्रेम्स की टीम है उनका धन्यवाद कि जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं। और एक बार डीएमई परिवार की ओर से मंच पर बैठे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते रहेंगे आप वृतिका 2025 के साथ यूं ही जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विशाल सर। 2 चीज़ें रह गई थी जो मैं ऐड करना चाहूँगी। पहली तो कि हमारे इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी वेंडर्स ने हमारा साथ दिया है। सारे स्पॉन्सर्स और वेंडर्स जितने भी है सब हमारे स्टूडेंट्स खुद लेके आए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट्स टू प्लीज़ इन्जॉय द फेस्ट। एक बार ज़रूर देखें हमने जो बाहर तैयारी की हुई है, प्लीज़ डू हैव अ लुक। एंड सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे पता चला अभी दैट भावना एंड आई वर इन द सेम स्कूल एंड वी आर मीटिंग आफ्टर 21 years. शी वॉज माई 1 year जूनियर इन स्कूल, सो इट वॉज अ प्लेजर टू मीट यू भावना। और दुनिया बहुत छोटी है, आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ऐसे से ज़रूर मिलेंगे जो आपकी लाइफ को इंस्पायर करे। सो कीप इंस्पायरिंग अदर्स ऑल्सो एंड गेट इंस्पायर्ड। थैंक यू। पुस्तकधारिणी वरवीणा पुस्तकधारिणी वाणी मंगलकारिणी चदुलराणी योगविचारिणी भवती विद्यां देहि तीर्त्सवे ज्ञानार्ति भवितकुवासट नीवे बासरवासिनी वीणा पुस्तकधारिणी वरवीणा पुस्तकधारिणी। सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुळभाषिणी वेदनुते पंकजवासिनी देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी जय पालय माम्। चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। नाशय पापं हर हर दुःस्वप्नं विध्वंसय विध्वंसय। नंदिनी नंदित मोदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी माधिनी विष्णु विलासिनी कृष्णनुते भगवती हेशिति
रम्यकपर्दिनि शैलसुते सकलननादतनीतते ताळनिमित्तजलासिरते कङ्कुमापतिवरकौन्दकताणुकताणुकुतूहलनादरते दिग्दिग्दिमिकिटदिग्गिटदिमिध्वनितीरमुदण्डनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते It's not just a dance but a prayer in motion. I would like the request the audience to give a huge round of applause for all the participants who did it. And let the energy continue as the next performance, Tattva Saroop, celebrates the four elements and the form of essence of life: earth, water, fire and air, interpreted through dance and expression. नृत्य के माध्यम से सृष्टि की कथा। कभी सोचा है हम सब किससे बने हैं? सिर्फ शरीर नहीं, हमारा हृदय, हमारी सांसें, सब प्रकृति के तत्वों से निमृत है। आज हम उन्हीं तत्वों की यात्रा को नृत्य के माध्यम से जी रहे हैं, जहाँ प्रकृति नृत्य बन जाती है और नृत्य से जन्म लेता है मनुष्य। कथा आरंभ होती है धरा से, शांत, सहनशील और अडिग। उसके नर्तन में ही स्थिरता, हर गति में सृजन की शुरुआत। जदों अंबरा बरसिया पानी, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू आई। रंगी परोड़ आवी, खुशियों संगे लावी, हर घाए हयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी, खुशियों संगे लावी, हर घाए हयो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए, उमंग भी छलकाए, मन हड़वे थी गुनगुनाए, हाय 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 हाय। के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। फिर बहता है जल जो जीवन को गहराई देता है, लहरों सा लयबंद, भावनाओं सा अनंत। वह सिखाता है नम्र रहो पर थमो नहीं। तू मर्ज है दवा भी, पर आदत है हमें, रोका है खुद को लेकिन तू मर्ज है दवा है। लहरों सा लयबंद, भावनाओं सा अनंत। वह सिखाता है नम्र रहो पर थमो नहीं। तू मर्ज है दवा भी, पर आदत है हमें, रोका है खुद को लेकिन हम रह न सके। तेरी लहरों में आकर ऐसे हम बहे, ले डूबी जा रही हैं गहराइयाँ हमें, कुछ जले हम कुछ बहे, तुझ में समाये से धुआं धुआं हुए। लहरों की जिद है ऐसी, लहरों में बहे, ले डूबी जा रही है गहराइयाँ हमें। फिर आती है वायु, हर चाल में उड़ान, हर लय में सांस।
वह कहती है जीवन तभी सुंदर है जब वह गति में। मनी पाम गा मरी सरे पा मनी पाम गा मरी पा गा 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 मा रे पा रे सारे रा मा गा रे। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आगे हम कहाँ ऐ मेरे जाने जा। इन बहारों में दिल की कली खिल गई। मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। जब सब एक स्वर में जल उठते हैं तो प्रकट होती है अग्नि, जो जलाती भी है उजियारा भी करती है। यही है भीतर की ज्वाला, सपनों और साहस की प्रतीक। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात पर है खाद मौत की बिछी बिसात। उठा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। भी है ये जलजला है पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। It was deep, meaningful and beautifully choreographed. I request all of us to stand here for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे